Hello, dear students. Our things going on the fundamental rights. Now I have explained the features, introduction of fundamental right, and then after the features of the fundamental rights. But now today have explained the fundamental rights contained in the Constitution have been classified in the following 7 categories. I have explained the 3 categories. Number 1, right to equality, wrote that in article number 14 to 18. Number 2, wrote that right to freedom, wrote that in article number 19 to 22. And third category is right to against an exploitation, wrote that in article number 23rd to 24th. But today have explained fourth category, right to freedom of religion. And right to freedom of religion, wrote that showing that article number 25 to 28. And Indian Constitution to provide and to grant of the right to freedom of religion. Right to freedom of religion. And article number 25 introduced freedom of religion means every citizen of India to follow of religion like and dislike, but their own conscience and their own profession, their own conscience and their own practices and propagate and to promote of their religion. Their own religion to propagate, to promote and socialization and gathered and assembled on the one place, the name of the religion local to international level. देखिए, हमारा आइन, हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के हर शहरी को पूरी तरीके से आज़ादी देता है. एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया इंजॉय ऑफ द एनी रिलीजन लाइक एंड डिसलाइक, अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक किसी भी मज़हब की फॉलो कर सकता है. एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया लाइक एंड डिसलाइक चूज द एनी रिलीजन एंड कन्वर्ट इनटू द एनी रिलीजन एंड टू फॉलो ऑफ द रिलीजन and to publish of religion and associate of the religion and to propagate and to promote of the religion depend on any consciousness, the any अंतरात्मा and any ज़मीर. कॉन्शियस का मतलब होता है ज़मीर, यानी इंसान अपने रूहानी आवाज़ पर, अपने दिल की आवाज़ पर, अपनी अंतरात्मा बेस पर, कॉन्शियसनेस पर किसी भी मज़हब की पैरवी कर सकता है, किसी भी मज़हब को फॉलो कर सकता है. तो नाउ आर्टिकल नंबर 25 टू प्रोवाइड ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू choose the religion and to worship of the religion, to follow of the religion, like and dislike, and to gather of and assemble of the one place name of the religion. और हमको ये भी राइट दिया गया है कि हम मज़हब के नाम पर यकजा हो सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल आवर मालेगांव सिटीज़ द ऑलवेज टू ऑर्गेनाइज ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलीजियस मिड़ावा, नेम ऑफ द रिलीजन, नेम ऑफ द बिलीफ, नेम ऑफ द फेथ. हम बिलीफ और फेथ के नाम पर, अपने मज़हब के नाम पर मिड़ावा कर सकते हैं. और इस तरीके से हमारे मालेगांव शहर में हमेशा जो है इस्लाम मज़हब का इज्तिमा मुनक़िद किया जाता है. तो देयर ओन रिलीजन टू प्रोपोगेट करना, उसकी अशाअत करना, उसकी तबलीग करना, टू प्रोमोट यानी अपने मज़हब को बढ़ावा देना, एंड सोशलाइजेशन यानी उसको फैलाना, एंड गेदर्ड और जमा होना, एंड असेंबल यकजा होना, वन प्लेस और एक जगह पर हम इकट्ठा हो सकते हैं, द नेम ऑफ द रिलीजन लोकल टू नेशनल लेवल. And then after the article number 26, freedom to manage religious affairs means every citizen of India to organize the association and the name of the religion, belief and faith
देखिए, हमारा हिंदुस्तान का आईन, हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर हमें इस बात की परमिशन देता है कि हिंदुस्तान का हर शहरी अपने बिलीफ और अकायद के मुताबिक एजुकेशन को कायम कर सकता है, तालीम हासिल कर सकता है, एसोसिएशन को कायम कर सकता है, नेम ऑफ द रिलीजन, फेथ एंड बिलीफ एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, इन द आवर कंट्री द नंबर ऑफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस, नेम ऑफ द रिलीजन, द विश्व हिंदू RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सुन्नी जमातुल उलमा हिंद, देवबंदी जमातुल उलमा हिंद, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड जमात इस्लामी. Now these are the number of Islamic and religious organization established and founded in this state, name of the belief, name of the caste, name of the religion, etc. So article number 27. Article number 27 wrote that freedom to payment of taxes for promotion of any particular religion. But now every religious, the name of the faith, the name of the belief, but to organizations of the institution, madrasa, masjid, mandir, girja, gurudwara, the number of holy places, establishment, the name of the religion, but now they are to fixed of the payment of the taxes for promotion of any particular religion. देखिए, हमको जो है हर एक की आज़ादी दी गई है. हम हमारे मज़हब के नाम पर मदरसा कायम कर सकते हैं, हमारी स्कूल और पाठशाला को कायम कर सकते हैं. उसके अलावा हम जो है हमारे हॉली प्लेसेस को जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर को कायम कर सकते हैं. अब उसमें जो भी अपॉइंटमेंट है सर्वेंट की, जैसे बांगी है, इमाम है, इसी तरीके से मंदिर में जो है पंडित को साधु को अपॉइंटमेंट किया जाता है. इसी तरीके से गुरुद्वारा में जो है गुरु को कायम किया जाता है और इसी तरीके से गिरजाघर में पॉप को कायम किया अपॉइंटमेंट किया जाता है. तो द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ रिलीजन, बट नाउ द आर्टिकल नंबर 27 टू प्रोवाइड ऑफ द फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन. और हम हमारे रिलीजन और हमारे अकायद के मुताबिक इन लोगों सर्वेंट का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और उनको अपने मर्जी के मुताबिक पेमेंट दे सकते हैं, उनको प्रमोशन दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और उस मस्जिद में जो है बहुत सारे चंदे, ज़कात, सदक़ात, खैरात के नाम पर आते हैं. इसी तरीके से जो है हिंदू मज़हब के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है, तो उस मंदिर में भी जो है लोग बहुत बड़ा बड़ा चढ़ावा करते हैं. यहाँ के किलो से जो है वहाँ पर सोना जमा होता है. इसी तरीके से अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पर लोग जो है भारी से भारी चंदा देते हैं, अतिया देते हैं. तो इस तरीके से वहाँ तमाम पैसे जमा होते हैं. तो हर मैनेजमेंट को पूरी आज़ादी होती है. देयर वेयर यूज्ड ऑफ द पर्सनल मैटर ऑफ द मनी मैटर to pay of the taxes and to pay of the payment of the servant and the particular the belief and faith of the religion. इस तरीके से. But then after the article number 28, freedom as to attendance at religious institution or religious worship in certain educational institutions with their religious right to established institutions for religion and charitable trust, charitable purpose, manage their own affairs and to own, acquire and administer movable and immovable property. देखिए, आर्टिकल नंबर 28 टू प्रोवाइड ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी हमको पूरी आज़ादी दी गई है. हम हमारे अकायद और बिलीफ के मुताबिक हमारे इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं. हम हमारे इन इंस्टीट्यूशन में जो है एडमिशन ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द आवर मालेगांव सिटी इज़ फुल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, but Muslim community establishment of the name of the religious institution, the number of madrasa to establishment in these cities and the number of institution establishment name of the belief and faith. For example, the ATT High School, and ATT High School is the Muslim institution, but now there we are give the order of the boys to wearing of the topi. Compare of the JT High School, JT Girls High School, and to belief of the
Muslim religion, but they are were to give the permission of the Muslim women and the Muslim girls to wearing of the burqa. So as well as to follow up their religious and attendance of the religious institution, but name of the belief and faith और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और हम हमारे अकायद के मुताबिक हम तालीम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एटीटी हाई स्कूल देखिए हमारा मुस्लिम बॉयज़ स्कूल है, तो वहाँ पर मुस्लिम अकायद के मुताबिक बच्चों को टोपी पहनकर आने की हिदायत दी जाती है। और इस तरीके से जेटी जो है मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पर लड़कियों को जो है बुर्का पहनकर आने की हिदायत दी जाती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, नेम ऑफ द रिलीजन, नेम ऑफ द बिलीफ, नेम ऑफ द फेथ, तो इस तरीके से। बट फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज मैनेज देयर ओन अफेयर एंड टू ओन एक्वायर टू एडमिनिस्टर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इस तरीके से हमको पूरा राइट हासिल है। हम चैरिटेबल ट्रस्ट को भी कायम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्फन एज चिल्ड्रेन पर स्कूल इंस्टीट्यूट जैसे यतीम खाने को हम कायम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है विधवा आश्रम को कायम कर सकते हैं। विधवा आश्रम मीन्स बेवाओं के लिए जो है हम एक आश्रम कायम कर सकते हैं। उसके लिए जो है गरीब बच्चों के लिए आश्रम कायम कर सकते हैं। बट चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट जिससे लोगों की इमदाद हो, लोगों को हेल्प हो। बट नाउ देयर वेयर टू प्रोवाइड ऑफ द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 28 and the propagate any religion subject to public order, morality and health. The state also enjoy the right to restrict any economic, social or political or other secular activity which may be associated. देखिए हमें मजहबी आज़ादी दी गई है, बट अंडर द लीगल कमिटमेंट। आई हैव एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नाउ फंडामेंटल राइट्स आर लीगल कमिटमेंट, सो एज वेल एज द आर्टिकल नंबर 25 to 28 to provide of the right to freedom of religion, बट अंडर द लीगल कमिटमेंट हम मज़हब के नाम पर किसी भी किस्म का तनाज़ा, किसी भी किस्म के रिस्ट्रिक्ट पैदा नहीं कर सकते। बट नाउ व्हाट इज़ द टेलिंग एग्जाम्पल ऑफ नेम ऑफ द मॉब लंचिंग। मॉब लंचिंग के नाम पर मुसलमान को हरासा परेशान किया जा रहा है। बट डोंट रिस्ट्रिक्शन द नेम ऑफ द रिलीजन एंड द स्लॉटर ऑफ काउ एंड क्लैशेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। बट नाउ देयर आर अगेंस्ट ऑफ द सेकुलरिज्म, बट डोंट राइट ऑफ द एनी पॉलिटिकल लीडर्स, द any social leader to explain the restrict and the aggressive nature about the secularism and against of the secularism. So that's the time right to freedom of religion, article number 25 to 28 use in their against of seek for the justice of violations of the our fundamental rights and the violations of the our freedom and violation against of the secularism. तो देखिए जहाँ पर भी हमारे सेकुलरिज्म को कोई ख़तरा लाहक होता है, जहाँ हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है, ऐसी सूरत हाल में हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाउ दीज आर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 to 28। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच। Our things going on the categories of the fundamental rights, and fundamental rights are classified following in the 7 categories. I have explained already the third. Dear students, in this video showing the categories of the fundamental rights, our things going on the categories of the fundamental rights, and fundamental rights are classified following in the 7 categories. I have explained already the third categories. Number 1, right to equality, wrote that article number 14 to 18. Number 2, right to freedom, wrote that in article number 19 to 22.
And third, right to against an exploitation, wrote that in article number 23 to 24. Number 4, today have explained the number 4 categories right to freedom of religion, wrote that in article number 25 to 28. And right to freedom of religion, article number 25, all persons are equal, entitled freedom of conscience and right freely to profess, practical and propagate and religion subject to public order, morality and health. The state also enjoys